Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In previous lecture, we discussed only the introduction of atomic spectroscopy. As I told you that there are mainly two types of spectroscopy, atomic and molecular spectroscopy. So initially we discussed the just introduction of atomic spectroscopy, and today we are going to explain the atomic emission spectroscopy, as atomic spectroscopy is further divided into two types of spectroscopy: atomic emission and atomic absorption. So now we are going to discuss it in detail. So what is atomic emission spectroscopy? Actually, emission spectroscopy deals with the characteristic radiations produced when atoms are excited. Once atoms are excited, then they go back to their initial energy levels, and upon going back they emit the radiation. So they emit radiation in the form of discrete wavelength of light, means specific wavelength of light, which are called spectral lines. What are spectral lines? These are those wavelengths which are emitted by the elements, by the electrons, when they are moving back to their initial energy levels. These lines are developed when electrons return to the lower energy states. So this technique is very useful specifically for determining the inorganic constituents in various type of samples, and the most common use is the direct analysis of solid samples. Okay students, this is very important to know that no two elements have the identical levels, therefore no two elements will have the same spectra. Means like our fingerprints, each element has its own spectra. So by determining that spectra we can determine the element structure or atomic structure. Okay students, in figure number 1.7 you can see the schematic diagram of spectrograph. On the left hand side you can see the folder or holder which is showing the sample, and then sample powder that is placed over here, and then the radiations are when radiations are passed, and then you can see the lens, slate, and those radiations they are dispersed by the dispersing element, which may be the prism or grating plates, and then these are passed through the photographic film. Okay, okay, this is actually the summary of the working principle of that spectrometer. The powder sample is placed in a graphite electrode, and that is shaped in a form of a cup. High voltage arc that is stuck between this and its counter electrode. Why high voltage spark is given? This is given because this causes the sample to vaporize, to forming the atomic vapors of the element present. In this way the individual elements are raised to their excited electronic energy levels. Means आप उन्हें जब इलेक्ट्रिक देंगे, आप स्पार्क देंगे, तो तभी उन्हें एनर्जी मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट्स पे चले जाएंगे. एक्साइटेड लेवल्स दे हैव अ शॉर्ट लाइफ, क्योंकि एक्साइटेड पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो वापस फ़ौरन जो है वो आना चाहते हैं. जब वापस आते हैं तो जाते हुए जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की होती है स्टूडेंट्स, वापसी पे वो एमिट करते हैं. दे ड्रॉप बैक टू द ग्राउंड स्टेट emitting the photons with the energy which is equal to h nu. h nu डेल्टा ई के इक्वल होता है, और डेल्टा ई जो है वो डिफरेंस है टू एनर्जी लेवल्स का. एक वो एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड एनर्जी में पड़े हुए थे, गए थे, और सेकंड जो एनर्जी लेवल है E1 वो होता है जिसमें इनिशियली वो ग्राउंड स्टेट में थे और अभी वापस आएंगे. तो डेल्टा ई E2 माइनस E1 का डिफरेंस है. सिंस देयर आर मैनी पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ने ये नहीं करना कि वो एक शेल से, मीन्स अगर वो शेल नंबर 1 से 5 में गया हुआ है तो वो 5 से डायरेक्ट 1 में ही जंप लगाएगा. नहीं, वो 5 से 4 में आ सकता है, 4 से 3 में आ सकता है, 3 से 2 और फिर 2 से 1 में, या वो 5 से 1 में, मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी को किस तरह से कर रहा है. तो इसलिए पॉसिबल डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट्स हो सकती हैं. इसलिए डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो है वो एमिट होती है. एमिटेड लाइट जब आ गई तो आपने उसे एक स्लिट में से पास करवाना है और फिर उसे डिस्पर्सिंग एलिमेंट में से पास करवाना है, यानी प्रिज्म जो उसे डिस्पर्स कर देता है. अब वो जो लाइट एमिट हुई है और वो डिस्पर्स होगी तो वो डिफरेंट वेव लेंथ्स में डिस्पर्स हो जाएगी, और वो वेव लेंथ जो है वो आपकी फ़ोटोग्राफिक फिल्म जहाँ पे आगे आपको नज़र आ रही है वहाँ पे जब पड़ेंगी तो वो लाइंस में सेपरेट हो जाएगा. वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमने डिस्कस की प्रीवियसली, तो वो जो हर लाइन है वो एक उस स्पेसिफिक वेव लेंथ को शो कर रही होती है जहाँ से जो एमिशन हुई होती है.
तो इस तरह से आपको उन लाइन के पैटर्न से जो है वो एलिमेंट का पता चल जाता है कि ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एटम है जिसने एमिट की हैं ये वाली लाइन। अब वो जो लाइंस एमिट हो रही होती हैं उनकी इंटेंसिटी जो होती है, ये 5 फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड कर रही होती है। एक तो ये है कि टाइम ऑफ एक्सपोजर, आपने कितना एक्सपोजर उन्हें दिया था, लाइट जो आप इंटरेक्ट की मैटर के साथ। दूसरा ये है कि जो आपने सैंपल लिया है उसमें जो एलिमेंट जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या जो आपका टेस्ट सैंपल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आपने रखी है। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स में उतनी एक्साइटेशन ज़्यादा होंगी, उनकी ज़्यादा जो है वो आपके पास लाइंस आएंगी। सेंसिटिविटी ऑफ फोटोग्राफिक इमल्जन, वो जो आपने फोटोग्राफिक प्लेट बनाई हुई है तो वो फोटोग्राफिक प्लेट में इमल्जन्स बना के उसके ऊपर की जाती हैं, उसकी कोटिंग की जाती है, तो जो फिर आके वहाँ पे आपकी फ़ोटोग्राफी होती है तो वो इमल्जन कैसी बनी हुई है, उसमें ग्रेन साइज़ यानी वो कितना फ़ाइन है इस पे भी डिपेंड करता है। और फिर कंडीशंस, किन कंडीशंस में आपने वो फिल्म जो कोटिंग की है वो आपने बनाई है, ये इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। कहता है इमल्जन मस्ट बी सेंसिटिव टू वेव लेंथ एमिटेड एंड मोस्ट ऑफ दीज अकर इन यूवी रीजन। तो ज़्यादा जो है वो इमल्जन भी ज़ाहिरी बात है वो सेंसिटिव होनी चाहिए वो, ताकि उनको कैप्चर कर सकें। तो दैट्स ऑल, दिस इज़ द एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कि आप कैसे सैंपल लेते हैं, उसको वॉलेटिलाइज करते हैं, फिर आप उसको स्लिट वगैरह में से पास करते हैं, प्रिज्म में से करते हैं, फिर वहाँ से डिस्पर्स हो जाती हैं वो वेवलेंथ, और वो वेवलेंथ वो जो डिस्पर्जन है फिर आप फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, प्लेट के ऊपर आप उनका इमेज ले लेते हैं।